5 6 7 7 یہ کیا ہو رہا ہے ملنگیا؟ یہ گنتی کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ حساب کتاب میں کچھ ہیر پیر ہو گئی ہے زرگل ماما. 7 8 9 10 کچھ 11. بتاؤ گی بھی یا نہیں؟ تنخواہ کے دن گن رہے ہو؟ تنخواہ گئی بھاڑ میں زرگل ماما. میں تو علی خان کا غم کھائے جا رہا ہوں. پورا 14 دن ہو گئے ان کو گاؤں سے گئے. پتہ نہیں شہر میں کیا دیکھا اس نے. آج کل وہ سوات کے سیر پر گئے ہیں. اچھا اس غضب کی ٹھنڈ میں سوات گئے؟ وہ بیچارے تو جم جائیں گے وہاں. وہاں تو ان دنوں برف پڑ رہی ہے. وہاں برف پڑ رہی ہے اور یہاں دھول. دونوں میں بڑا فرق ہے ملنگیا. لیکن تمہاری دماغ میں خاک ہیں گی یہ باتیں. میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ اونچے لوگوں کی ڈھنگی نرالے ہوتے ہیں. علی کی کوئی خبر نہیں آئی زرگلا؟ شاید وہ ابھی سوات سے واپس نہیں لوٹے. مجھے ابھی تک گل محمد نے میرے پیغام کا جواب نہیں دیا اور اس بات سے مجھے بڑی تشویش ہے. علی نے ان تک آپ کی بات ضرور پہنچائی ہوگی خان. یہی تو میں سوچ رہا ہوں. گل محمد کو شاید فقیرے کا مطالبہ ناگوار گزرا ہے، اس لیے تو اس نے جواب دینے میں خاموشی اختیار کی ہے. فقیر محمد کی زبان کون بند کر سکتا ہے خان؟ پرایا حق تو ایک نہ ایک دن دینا پڑے گا. اور اگر گل محمد نے دینے سے انکار کر دیا تو پھر بڑا فساد برپا ہوگا خان. وہ تو خود شہر میں آرام سے بیٹھا تماشا دیکھے گا. اس کی لڑائی میں ہم مارے جائیں گے. فقیر محمد تو آج کل اپنے ساتھ بڑے بندوق شندوق لیے پھرتا ہے. پورا میگزین ہوتا ہے اس کے ساتھ خان. ہم بندوقوں سے دبنے والے نہیں ملیں گے، لیکن بات انصاف کی ہونی چاہیے. انصاف کی بات یہی ہے کہ حقدار کو اپنا حق لوٹانا چاہیے. اکشن صاحب کا دل مانے یا نہ مانے، اس کو ناصر خان کی ماں کی 50 جریب زمین دینی ہوگی، شریعت کی روح سے بھی اور قانون سے بھی. قانون اگر کسی کاغذ کا نام ہے تو میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا خادم حسین. جی سر. فقیرے کو اپنی مری ہوئی بہن کی جائیداد کو زندہ کرانے کی فکر لگی ہوئی ہے، لیکن میں بھی علاقے کا بندہ ہوں اور وہاں کے داؤ پیچ مجھے بھی معلوم ہے. میری مانے سر تو آپ کو اس جائیداد کی آمدنی کیا آتی ہے؟ اگر آپ اس کی بجائے اس منصوبے پر کام کریں تو فلور ملز اور پیٹرول پمپ کی آمدنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اپنی دولت کو گلیوں میں رینگنے والے لفنگوں میں بانٹتا پھروں. فقیرہ میری جائیداد کا میراث خور نہیں. اور وہ دوسرا؟ تمہارا مطلب اگر ناصر سے ہے تو وہ کس رشتے کے بل پر میری جائیداد کا دعوے دار بنا پھرتا ہے؟ سر جی، قانون کی کتابوں میں اس کی حیثیت آپ کے بیٹے کی ہے. وقت کے قلم نے میرے اور اس کے درمیان موجود تمام رشتوں پر لکیر کھینچ دی ہے خادم حسین. لیکن لوگ کہتے ہیں فقیرہ بڑا خراب شخص ہے. بڑے خراب شخص کا علاج بھی میں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، لیکن پہلے تو میں اس کے ساتھ اپنا فیصلہ عدالت کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن سر جی، قانونی طور پر ہماری پوزیشن بہت کمزور ہے. نکاح نامے میں حق مہر کا کاغذ ایک بڑی اہم اور مضبوط ڈاکیومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. کاغذ کے ہر پرزے کی قیمت ان کاغذوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی خادم حسین. اور پھر دیوانی کیسوں کا سلسلہ تو بڑا طویل ہوتا ہے. عدالت میں اس کیس کا فیصلہ ہونے تک ہو سکتا ہے فقیرہ بھی اپنا فیصلہ بدل ہی ڈالے. میں سمجھا نہیں سر جی. پیسہ بڑی ظالم شے ہے خادم حسین. اسے دیکھ کر لوگ اپنا ضمیر بھی بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی. لیکن فقیرہ؟ فقیرے کی طرح بہت سارے لوگ میری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں جو غیرت کے جوش میں آ کر اپنے منہ سے آگ کے گولے برساتے ہیں، لیکن ان کی نظروں کے سامنے لالچ کی چند بوندیں ٹپک جائے نا تو ان کا سارا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. سر جی، اس مرحلے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی حفاظت تو کرنی ہوگی نا سر جی. حفاظت تو بہت ضروری ہے خادم حسین. اب تو میں اپنے ساتھ پورا باڈی گارڈ لے کر چلوں گا.
کیا بات ہے عبداللہ چاچا، آج کل آپ لوگ اصلی کی طرف کوئی بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے کا ارادہ تو نہیں؟ اپنی طرف سے تو ہم صلح صفائی کی کوشش کر رہے ہیں. اگر دوسری جانب سے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو پھر ہمیں بھی سامنا کرنا ہوگا. لیکن میں ایسا نہیں چاہتا. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن عمر بھر تمہارے حق پر ڈاکے ڈالتے رہیں؟ دشمن کے گھر سے بھیجا ہوا نوالا میرے حلق سے کیسے اترے گا؟ غیرت والے دشمن کے پاس اپنے حصے کا زہر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. مجھے تو اپنے فقیر محمد خان پر حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے آخر کیا سمجھ کر تمہاری ماں کی جائیداد تمہارے باپ کے ہاتھوں میں چھوڑ رکھی تھی. ان لوگوں میں ذرا بھی شرافت ہوتی نا تو جائیداد کے بارے میں آج بھی خاموش رہتا. میں آج بھی اتنا بےغیرت نہیں بنا ہوں دلیا کہ اپنے بہن کے گھر سے آئے ہوئے تریاک کے عوض اپنی زندگی کی سانسیں خرید لوں. میں تو یہ سب کچھ اس کی خاطر کر رہا ہوں. لیکن یہ خود وہ نہیں چاہتا خان جو آپ چاہتے ہیں. اسے اپنا فائدہ عزیز نہیں تو پھر دوسروں کے نقصان کی فکر ہوگی. حرام گوشت کے صدقے مجھے قبول نہیں ماما جی. مردار گوشت کو چیلوں کے سامنے تو پھینکا جا سکتا ہے مگر دشمن کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا. میرا کوئی بھی دشمن نہیں، میں کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتا. دشمن نہیں سمجھتے تو پھر اس شخص کو اپنا دوست سمجھتے ہو، اپنے باپ کو. مجھے مردہ باپ کا نہیں، زندہ باپ کا مفاد عزیز ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کے سوا میرے لیے دنیا کے سارے رشتے مر چکے ہیں. زندہ لوگوں کے لیے زندگی میں سب سے گھاٹے کا سودا موت کا ہوتا ہے اور موت کو ہر وقت گلے لگانے کے لیے میں تیار رہتا ہوں. یہ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ ایک معمولی سا گفٹ، خلوص اور پیار کی مٹاس سے بھری ہوئی بوتل. دس از ہنی فرام سوات، 100% پیور شہد. او یہ تو تم پورے کا پورا سواد بھر کر لے آئے ہو. یا پورا نہیں، آدھا سواد. آدھا کس طرح؟ 2 بوتلوں میں سے میں نے ایک آپ کو دیا اور دوسرا بیگم صاحبہ کے حصے میں آیا. پھر تو تمہاری وفاداریاں مجھے مشکوک نظر آ رہی ہیں. مشکوک نہیں، مضبوط. میں تو ان 2 گھروں کے درمیان 50-50 ہو چکا ہوں. یوں سمجھ لیجیے کہ میں ان 2 گھروں کے درمیان لٹک رہا. تم تو مجھے خلائی انسان معلوم ہوتے ہو مسٹر وکیل. آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میرے خیالات خلا سے بھی کچھ اونچے ہیں. میرے حالات بھی بہت جلد بدلنے والے ہیں. میری تنہائیاں ختم ہونے والی ہیں. میرے بچے وطن واپس آ رہے ہیں. آپ کی تنہائیاں ختم ہونے والی؟ پھر تو میں بالکل تنہا رہ جاؤں. تم تنہا؟ میرے بچوں کے یہاں آنے سے تمہارے جغرافیے پر کیا اثر پڑے گا بیوقوف؟ صرف جغرافیہ نہیں، میری تو پوری کی پوری تاریخ تہس نہس ہو جائے گی. آپ کے بیٹے یہاں آ جائیں گے تو میری کیا امپورٹنس رہ جائے گی؟ آپ کی خانہ آبادی سے میں اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہو کے رہ جاؤں گا. نہیں وکی، نہیں. تمہارا اپنا مقام ہے اور میرے بچوں کا اپنا. میرا مقام کیا آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ تم میرے دوست ہو. یو آر مائی فرینڈ، مائی ہنی، مائی ہارٹ، اینڈ وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ. تھینک یو انکل، مجھے آپ کی دوستی پر فخر ہے. تمہاری بیگم صاحبہ کے رویے نے مجھے تشویش میں ڈالا ہے. بیگم صاحبہ کا رویہ؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرا بدر کل یہاں آنے والا ہے اور ان کے آنے کی اطلاع بھی میں نے وہاں بھجوائی ہے، لیکن اس کے باوجود بیگم صاحبہ کی طرف سے کسی قسم کی رد عمل کا مظاہرہ نہیں ہوا. نو رسپانس ایٹ آل. زیادہ تو مجھے خبر نہیں ہے، لیکن سر آج کل اس گھر میں ایک میننگ فل خاموشی چھائی ہوئی ہے. میننگ فل خاموشی؟ واٹ ڈو یو مین؟
आपने क्या फैसला किया है बेगम साहबा? किस बात का फैसला? अलाउद्दीन खान के घर जाने का। तुम्हें ये किसने कहा कि मैं उनके घर जाऊंगी? ये मेरी ख्वाहिश है जी, और ये तो यहाँ के तकाजे और दस्तूर की बात है कि अरसा गुजारने के बाद जब बाहर के मेहमान अपने वतन लौट आते हैं तो उनके अजीज व अकारिब को उनसे मिलने और उन्हें खुशामदीद कहने के लिए जाना ही पड़ता है। आपके वहां जाने से अलाउद्दीन खान बहुत खुश हो जाएंगे। तुम कोई अलाउद्दीन खान के एजेंट तो नहीं हो सैफुद्दौला? मैं खान बहादुर साहब का नमकहार हूं बेगम साहबा, और इस घर का हर खैर खा यही चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से ये घर बन जाए। इस किस्म की ख्वाहिश रखने वाले खुद भी यहाँ कदम रखने से गुरेज नहीं करेंगे सैफुद्दौला। अगर आप खुद वहां जाना पसंद नहीं करती तो फिर छोटी बीबी को अपने चचा के घर जाने की इजाजत दे दें। मैं ज़ेबी का वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझती। फिर इस मसले का हल क्या होगा? अगर कोई बात बनाना चाहे तो हर मसले का हल मौजूद होता है सैफुद्दौला। वो कैसे जी? तुम अलाउद्दीन लाला को अपनी तरफ से कह देना कि मेरा घर एयरपोर्ट से आने वाले रास्ते में पहले आता है। जी ये बात तो है। और अगर वो इस घर को अपने बड़े भाई का घर समझता है तो उन सब की पहली दावत यहीं होगी। हेलो डैड। हेलो अंकल। इस जेंटलमैन से तो पहली बार मिले हो। ऑफ कोर्स। माय नेम इज विकी सर। नाइस टू मीट यू। इनके लुक्स तो मुझे लोकल नहीं लगते डैड। विकी फ्रॉम बटाग्राम सर। ओह, ये नाम भी मेरे लिए परेशान कुन हद तक स्ट्रेंज है। तुमने सारी जिंदगी वतन से बाहर गुजार दी, तुम्हारे लिए यहाँ के शहरों और कस्बों के नाम यकीनन अजनबी होंगे। जीएम, मेरा ख्याल है चलें, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं सर? बेगम साहिबा। बेगम साहिबा ने यहाँ खुद आने की तकलीफ क्यों नहीं की? मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी। ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। और इससे बढ़कर अजीब बात यह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने घर पर फॉर्मली हमें दावत दी है। अच्छा, फिर आप लोग जाएं सर। और आप? हम बाद में आपके घर आ जाएंगे। ओके, वी विल अरेंज। आओ बेटा, चलें। ये तस्वीर कहां से आ गई जी? खान बहादुर साहब की पुरानी तस्वीर देकर बनवाई है। बड़े कमाल की तस्वीर है। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे खान बहादुर साहब खुद। सैफुद्दौला, गए वक्तों की याद आ गई है बेगम साहब, और अब न जाने एक ख्याल क्यों मेरे दिल में बार बार आता है। कौन सा ख्याल? छोटी बीबी अब जवान हो गई है
اس کا تعلیم بھی ختم ہو چکا. اب جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کا گھر بسانا چاہیے. میں تو خود ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں، لیکن سیبی کے چلے جانے سے میرا گھر ویران ہو جائے گا. میں تو بالکل تنہا رہ جاؤں گی صفت اللہ. اب یہ کیسی باتیں کرتی ہے بیگم صاحبہ؟ اللہ کا شکر ہے علاؤالدین خان کا لڑکا آنے والا ہے اور ان کے ہاں چھوٹی بی بی کا رشتہ طے ہو جائے تو گھر کی بات گھر ہی میں بن جائے گی اور بیٹی کے ساتھ آپ کو بیٹا بھی مل جائے گا. میرے ایسے نصیب کہاں صفت اللہ. علاؤالدین خان خود بھی یہی چاہتے ہیں اور وہ لوگ ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں اور آپ کو اس بات کے فیصلے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. خان بہادر صاحب کے خاندان کے لوگوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. انہوں نے ساری عمر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، صرف اس لیے کہ خان بہادر نے ایک غریب خاندان میں دوسری شادی کر لی. آپ پرانی باتوں کو بھول جائے بیگم صاحبہ. اگر ان کی نظروں میں آپ کی عزت نہ ہوتی تو وہ آپ کے گھر آنے میں پہل کیوں کرتے؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ وہ خان بہادر کی بیٹی کا مانگ رہے ہیں، اپنی بھتیجی کا. مجھے تو وہ باہر کی اور غیر عورت سمجھتے ہیں. میں آتا ہوں. میرے خیال میں وہ لوگ آ گئے. مہمان پہنچ گئے ہیں جی. السلام علیکم بھابھی. السلام علیکم بیٹے. یہ رہی ہماری بھابھی. بھابھی یہ آپ کے کیلیفورنیا کے مہمان. کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں لیلا بہن. کم از کم 10 سال بعد. آنٹی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ بھابھی بیٹی کہاں ہے ہماری؟ آئے نا اندر چلتے. چلیے آؤ بیٹا. دیکھیں ابھی تو ہم نے صرف ملنا تھا آپ سے، بچوں نے سلام کرنا تھا. آئیں گے پھر وقت گزاریں گے آپ. ایک پیالی چائے پیے بغیر تو آپ لوگ جا نہیں سکتے کسی صورت میں. آئے لیلا بہن آئیے. ٹھیک ہے. چلیں جیسے آپ کی خوشی. آئیے. چائے کی ایک پیالی ہی ہوتی ہے آنٹی. جسٹ اے کپ آف ٹی. بدر بیٹے اسے کہتے ہیں مشرقی روایات. سادگی سے بھرپور تکلفات، تکلفات سے بھرپور لوازمات، مہمان نوازی کی حدود سے تجاوزات، اینڈ وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ. ہیلو پرنس. بڑا ریش ڈرائیو کر رہے تھے یار. خیریت تو ہے؟ آج کل ہمارے یار کے جذبات بڑے سپیڈی ہیں. اس کی حالت پر ہمیں بھی ترس آتا ہے. حالت تو ہمارے بھی قابل رحم ہے. ہمیں تو کوئی پوچھتا تک نہیں. آج پورے 3 دن کے بعد پرنس کا دیدار نصیب ہوا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں. میرے تو اعصاب پھٹ رہے ہیں. وہ تو سب تمہارا اپنا کیا درا تھا. آستین میں اپنے لیے سام پالنے والوں کے ساتھ یہی سلوک تو ہونا تھا. ہاں، اپنے ہی گھر میں اپنے رقیب کو مہمان بنا کر
तुम्हें शिकायत किससे है? तुम अली की छुट्टी क्यों नहीं करा देते? अली के साथ बाद में देखा जाएगा। मेरा असली राइवल तो कैलिफोर्निया से वारिद हुआ है। कैलिफोर्निया? हाँ, जेबी का कजन पहुंच गया है उसे प्रपोज करने के लिए। मैं तुमसे गिला करने आई हूँ नाज। गिला? गिला किस बात का? सवाल से वापसी के बाद तुमने मुझे पूछा तक नहीं, टेलीफोन पर बात करने की तकलीफ भी गवारा नहीं की। What's wrong with you, नाज? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। मुझे खुद भी इस बात का एहसास है जेबी, लेकिन मुझे मालूम है आजकल आप लोग बहुत बिजी हैं और आपके यहाँ घर के मेहमान भी आए हैं, इसलिए हम बीच में आने वाले कौन हैं? घर के मेहमान तो नहीं, अलबत्ता तुम उन्हें बाहर का मेहमान कह सकते हो। बाहर का मेहमानों का तुम्हारे घर के साथ गहरा रिश्ता भी तो है, बल्कि होने वाला है। लेकिन उन लोगों में मेरी ज़ाती दिलचस्पी कोई नहीं। अगर कोई इंटरेस्ट है भी तो वो सिर्फ मेरी मम्मी की ज़ात है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें किसी भी हद तक ले जाने पे मजबूर तो कर सकती हैं। वो तो बात की बातें हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए तो इस पर तुम्हें क्या एतराज़ हो सकता है? हमें क्या एतराज़ हो सकता है भाई? मुझे तो ज़ाती तौर पे इस पे बहुत खुशी होगी। वैसे मेरे कहने का मकसद तुम समझी नहीं जेबी। तुम कहना क्या चाहती हो? उन लोगों के आ जाने से तुम्हारे घर का माहौल कुछ नॉर्मल सा हो गया है और नॉर्मल किस्म के माहौल में मैं कुछ अनईजी फील करती हूँ। लेकिन वो लोग तो तुम्हारी मम्मी की तरफ से तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ तुम्हारे घर वालों का आना जाना भी है। सिर्फ बदर की जात से इस कदर घबराहट क्यों? सिर्फ बदर भी तो तुम्हें मुल्क बदर करवा सकता है। इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं। तो फिर किसके बारे में सोचे? बेटा ये इतनी ढेर सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? अपने लिए भी कुछ पसंदाज कर लिया करो। आजकल में हम तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की करने जा रहे हैं। मेरे रिश्ते की बात? हाँ, तुम्हारे चचा के घर। ये मुश्किल है माँ, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसी? गुल मोहम्मद खान ने तुम्हारे बाप को मोहलत दी थी, उसमें भी महीने गुजर गए। अब तो उनके साथ फैसले का वक्त आ पहुंचा है। उनकी तरफ से जो फैसला होने वाला है उसका मुझे पहले से इल्म है। तुम्हारा मतलब क्या है अली? मैं उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ूंगा जिनकी नजरों में मेरी भी कुछ वक़्त हो। तुम किन लोगों की बात कर रहे हो सकता है वो लोग महज मेरे ख्यालों ही में रहते हो। तुम्हारे ख्यालों में? मैं यहाँ किसके साथ बातें करूं? बर्फ के इन तोदों के साथ? वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ ज़ेबी। मेरे लिए? मैं तुम्हें दूसरे लोगों से कुछ अलग और मुनफरिद समझता हूँ। शायद ऐसा मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अजीब इत्तेफाक है, हम एक दूसरे के बारे में एक जैसा सोचते हैं। एक जैसी सोच रखने वाले लोग एक दूसरे से अलग थलग क्यों रहते हैं अली? सोच तो एक जैसी हो सकती है लेकिन क्लास जुदा जुदा। तुम किन ख्यालों में खोए वाली? शहर जाने का इरादा नहीं? बेटा तुम्हें देर हो रही है। जाना तो है बाबा, लेकिन हाँ वो आज तो तुम्हें गांव ही में ठहरना पड़ेगा। गांव में? हाँ, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे चचा के यहाँ शहर जा रहे हैं तुम्हारे रिश्ते की बात तय करने। लेकिन बाबा। कहो कहो क्या बात है? आप नहीं जानते, वो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बाप खुद से बड़ा किसी को नहीं समझता। हो सकता है आप जो ख्याल करते हैं हकीकत उससे बरक्स हो। ये गैरत और दस्तूर की बातें हैं बेटे, और इससे बड़ी हकीकत मेरे सामने कोई हो ही नहीं सकती। रशे, जाने की तैयारी करो। अच्छा।
खान मुबारक। किस चीज की मुबारक दे रहे हो? बहुत बड़ी खबर है खान, हमारी दुआएं रंग ले आई हैं। तुम्हारा अरमान पूरा हो गया है। ओफो दुलिया, कुछ बताओगे भी कि नहीं? तुम्हारा बेटा मुकाबले के इम्तिहान में पास हो गया है। क्या क्या ये सच है? देखो ना। नासर खुद कहाँ है? ये लो तुम्हारी मिठाई। पता नहीं, वो सुबह सवेरे तहसील गया था अखबार लेने। और ये खबर? खबर और अखबार उसने वहीं से पशमगुल के हाथ भेजी हैं। ये खबर इतनी छोटी खबर थी कि उसने मुझे दूसरों के हाथ भेजी है? कोई बात नहीं खान, किसी दोस्त के पास ठहर गया होगा, आ जाएगा। ऐसा ना हो वो शहर अली के पास ना चला गया हो। वो कोई बच्चा भी तो नहीं खान कि शहर जाकर गुम हो जाएगा। और अली भी कोई बुरा लड़का तो नहीं। शेर खान का बेटा मेरे दुश्मन के घर पे ठहरा हुआ है, और दुश्मन के घर के खैरात से भी मुझे फसाद की बू आती है। नासर आपसे पूछे बगैर शहर कैसे जाएगा, और फिर वो भी उनके यहाँ? यही तो मैं भी सोचता हूँ कि वो कहाँ गायब हो गया है। तो क्या ये तो ऐसा मौका था कि वो सीधा मेरे पास चला था। वालेकुम अंदर मामा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों के बाद नजर आए हो। हाँ, अली गांव में मौजूद न हो तो फिर इसका गांव में क्या काम इंदरगुल मामा? गांव में इसको उसकी याद आई है इसलिए तो आया है। क्या अली गांव में है? अली गांव में न होता तो फिर आप किस लिए आते यहाँ? मैं ये मालूम करने आया था कि वो कब शहर से आने वाला है। कल शाम ही पहुंचे यहाँ। कहाँ है वो? घर की चौकीदारी कर रहा है। घर की चौकीदारी? हाँ, घर के लोग शहर गए हुए हैं एक सीएम साहब के यहाँ। उनकी वापसी तक अली घर में बैठा रहेगा। अली उनके साथ क्यों नहीं गया? बात ही कुछ ऐसी थी, उसके रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा, मैं समझ गया। चलो चलते हैं उसके बाद। चलो चलो। तुम्हारा रिजल्ट? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा एक देहाती IBCSS के इम्तिहान में कामयाब हो सकता है ना। अरे यार, तुम्हारी पूरे जोन में फर्स्ट पोजीशन आना मेरे लिए एक अचंभे की बात है। तुमने तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। अच्छा, आप ज्यादा मस्का लगाने की कोशिश मत करो। चलो मामा जी के पास चलते हैं। मामा जी को तो मुबारकबाद देने मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे बाबा एंड को के आने का इंतजार है। और मैं बांडे जाकर इस इंतजार में बैठा रहूं कि मेरी मुबारकबाद के साथ तुम्हारी खुशखबरी शामिल हो। मेरी खुशखबरी? हाँ, तुमने तो जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश की है, लेकिन खैर, यार के लिबास से भी यार की खुशबू आती है। इस गांव की हवाओं ने भी मुझे यह राज की बात बताई है। मैंने किसी मसलहत की वजह से तुमसे ये बात छुपाई होगी। मसलहत कौन सी? मेरे माँ बाप मेरी मर्जी के खिलाफ वहाँ गए हैं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? हाँ, उन लोगों के साथ ताल्लुक मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनके साथ नए रिश्ते कायम करना तुम्हारे और मेरे दरमियान रिश्ते काट देगी। तुम गलत समझे हो अली। उनके साथ तुम्हारा नया रिश्ता मेरे और तुम्हारे रिश्ते को तकवीत देगा, इसको और मजबूत करेगा। मैं तुम्हारे बाप की बात करता हूँ नासिर। मैं अपनी बहन की बात करता हूँ अली। नासिर? हाँ अली, मैं उस बाप का नाम भी अपने लिए काली समझता हूँ, लेकिन उसकी बेटी मेरी बहन है। लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई ने कभी झूठ से भी तुम्हारा नाम नहीं लिया नासिर। वो लोग शायद अपनी असलियत, अपनी मिट्टी से रिश्ते तोड़ चुके हैं, लेकिन मैं अपने वजूद के जरों को नहीं भुला सकता अली। वो भी तुम्हारा भाई है बच्चे। फकीरा तो बाहर का आदमी है, लेकिन नासिर का भी तुम्हारे बाप के साथ हक बनता है। फिर मेरे बाप से लोगों ने अपने बेटे को अपने पास रखने का हक क्यों छीना था, और अब जायदाद की खातिर उसे हमारा भाई बनाकर सामने लाया है? सिर्फ जायदाद के लालच में वो अपने बाप का बेटा बना है। सारी बातें खान लाला के इल्म में है बेटा, लेकिन फिर भी हमारे सामने उन लोगों की वकालत करते हैं। मैंने तो जिंदगी भर लोगों के सामने तुम्हारी वकालत की है गुरु। फकीरे की दुश्मनी तुमसे ज्यादा मेरे गले पड़ी है। दुश्मनी के खौफ से हम अपनी जायदाद दूसरों के हवाले नहीं कर सकते। और अगर कानून ने उनके हक में फैसला दे दिया तो फिर? कानून का इलाज है मेरे पास खान लाला, ये आप मुझ पे छोड़ दें। ठीक है, तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं फकीरे के खातिर तुमसे नहीं लड़ूंगा। मेरे भाई तो तुम हो।
जाओ बेटा चाय का कह दो किसी से। अच्छा। तुमने अभी तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया गुल मोहम्मद। आपकी बात मैं नाजी की माँ तक पहुंचा चुका हूं खान लाला। इन बातों का फैसला तुम करोगे या नाजी की माँ? आप पुराने वक्तों की बातें करते हैं, अब तो दुनिया बदल चुकी है। दुनिया बदल चुकी है या तुम्हारा ख्याल बदल चुका है गुलू? ये लड़की की जिंदगी का सवाल है खान लाला, और लड़की की माँ को लड़की से भी पूछना पड़ेगा। लड़की से? ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तो अपने बेटे से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। ये अच्छा नहीं किया आपने। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर तुमसे कुछ मांग कर मैंने अच्छा नहीं किया गुलू। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है खान लाला। इन बातों से मैंने खुद को दूर रखा है। मेरी बेटी भी तालीम याफ्ता है और उसकी माँ भी, और उन दोनों ने मिलकर जो भी फैसला किया वो आपने भी कबूल करना है और मैंने भी। यस। बेगम साहब आपको बुला रही हैं बीबी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं खाना लगा रहा हूं, सब लोग आए हैं, सिर्फ आपका इंतजार है। मेरे बगैर वो लोग खाना नहीं खा सकते क्या? देखो बीबी, घर में मेहमान आए हैं, आपका चचा है, उनका बेटा है, और बेगम साहब आपसे नाराज हो जाएंगी। मैंने तो रात का खाना भी उनके साथ मिलकर खाया था, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। कभी कभी इंसान को दूसरों की खुशी की खातिर तकलीफ उठानी पड़ती है। कितने अरसे बाद इस घर के लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका मिला है। ठीक है सिफतुल्ला अंकल, आप जाए। बदर साहब लाउंज में बैठे हैं। बेगम साहबा का हुक्म है कि आप उन्हें खाने के कमरे तक ले आए। कैलिफोर्निया के मुतालिक मैंने बड़ी स्टोरी सुनी है बीडी। यहाँ मेरा नाम बदरुद्दीन है और बीडी स्टेट्स में रह गया। मेरे हिसाब से तो बदरुद्दीन से बीडी ही बनता है। जैसे मेरा नाम वकार अली शाह है और मैं शॉर्ट हैंड में अपने आप को विकी कहलाता। योर नेम इज योर्स एंड माइन इज माइन। और तुम्हें ये इजाजत कहां से मिली है कि तुम अपनी तरफ से लोगों की पर्सनालिटी डिवेट करते जाओ? इट्स टू बैड। मैंने तो सुना है कि स्टेट्स में लोग बड़े टू द पॉइंट होते हैं। तुमने ये भी सुना होगा कि डू एज द रोमन्स डू व्हाइल इन रोम। मैं अपने आबाई वतन आया हूं और मेरे वालिद बड़े स्ट्रांग पाकिस्तानी हैं। अंकल एडी बड़े जबरदस्त आदमी है और तुमने कैलिफोर्निया में उस जैसे शय बहुत कम देखी होगी। पाकिस्तान में तुम्हारी जैसी शय मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। थैंक यू। तुम तो मुझे एक अजीब व गरीब एंटीक नजर आते हो। ठीक, मैं तुम्हें एंटीक नजर आता हूं। यहां के लोग तो मुझे बड़ा मॉडर्न समझते हैं। वैसे कैलिफोर्निया के मुतालिक मैंने बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनी हैं। कहानियां? मसलन ये कि वहां कदम कदम पर किस्से बनते हैं। किस्से यहां भी बनते हैं और वहां भी।
लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि यहां लोग किस्से को तूल देते हैं और वहां किस्सा मुख्तसर करना पड़ता है और हर एक बात को शॉर्टकट में अप्रोच किया जाता है। आप मुझे शॉर्टकट में बता सकते हैं मिस्टर बदरुद्दीन दुरानी कि आप कैलिफोर्निया से यहाँ किस ख्याल से आए हैं? क्यों, तुम्हें यहां मेरे आने पे एतराज है? अगर आप यहाँ मुस्तकिल तौर पर आए हैं यानी परमानेंट बेस पर, तो फिर तो मुझे एतराज ही एतराज है। मेरे यहां ठहरने पे आपको क्या तकलीफ हो सकती है? मुझसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी मिस्टर बीडी, आई एम सॉरी मिस्टर बदरुद्दीन दुर्रानी। मुझे क्या तकलीफ होगी? उस खूबसूरत जहां को छोड़कर तुम यहाँ दुखों और गमों की दुनिया में आबाद होने आए हो। तुम बेफिक्र रहो, इस दुनिया को साथ लेकर मैं उस जहां में ले जाना चाहता हूं। उस जहां में? फिर तो कयामत आ जाएगी। आप वहाँ आ जाइए प्लीज। डाइनिंग रूम में सब लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। और मैं यहां तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू ज़ेबी। वहाँ खाना लगा है। इट्स लंच टाइम। मामा ने आपको बुलाया है। मेरे लंच का टाइम ये नहीं, अभी 1 घंटा पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तुम आओ बैठो, ये एल्बम तुम्हारे लिए। आओ। आओ आओ बैठो। ये है मेरे मेडिकल कॉलेज के फोटोग्राफ और ये है न्यूयॉर्क। कैसी है? जी ठीक है। आप बहुत जल्द उठ गए। इस कदर कम खाया आप लोगों ने? आपने तो पूरे महीने के राशन की तैयारी की है भाभी, और बदर की माँ बेचारी तो पूरे 10 माह बाद वतन वापस लौट कर आई। इसके लिए ये डिशेस हजम करने में उतना ही अरसा लगेगा। मेरे बच्चों ने तो वहां मुझसे जबरदस्ती डाइटिंग करवाई है। 2 डॉक्टरों की माँ को तो खाने में सिर्फ विटामिन की गोलियां ही मिलेंगी। लेकिन आज तो मुझे हाजमे की गोलियों की जरूरत पड़ेगी। जनाब आप तशरीफ रखें, मैं अभी कहवा था। अमेरिका जाकर तो आप अपने घर को बिल्कुल ही भूल गई लैला बहन। अपने बच्चों के पास पहुंचकर इन्हें घर की याद कैसे आती? मेरे बेटे आपकी मर्जी से गए हैं वहां, और फिर मैं इतनी मुद्दत के बाद उनसे मिली हूँ। इतनी आसानी से मुझे वो कब छोड़ने वाले थे? बदर और मैं तो अब भी शहाब से छुप कर आए हैं। आप तो अमेरिका में अपने बेटों और उनकी फैमिलीज के साथ मजे में थी, और यहाँ मेरा घर यतीम खाना बना हुआ था। यतीम खाना? और उस यतीम खाने में वाहिद यतीम मैं ही था। इंतजार का कर्ब, तन्हाई का अजाब, आंखें नमनाक, गिरेबान चाक एंड व्हाट नॉट। ये डायलॉग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। टेलीफोन पर तो कभी आपने इतनी शिद्दत से मेरे ना आने की शिकायत नहीं की थी। शिकायत और एहतजाज का मुहज्जब तरीका मेरी तरफ से मुसलसल खामोशी था। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप लोग लड़ाई झगड़ा बंद करें। वैसे लैला बहन, अलाउद्दीन लाला की तन्हाई को हम सब ने बुरी तरह महसूस किया था। मैंने तो कई बार ज़ेबी के जरिए इन्हें यहाँ आने की दावत दी, लेकिन ये अपनी जिद और अना के किले से बाहर निकलने पर किसी तरह राजी ही नहीं होते। जिद और अना का मजबूत किला तो आपके हाथों मस्मार हो गया भाभी। मेरे हाथों? यहाँ आकर मैंने अपनी गैरत और अना आपके कदमों में रख दी है, अब भी आपको गिला? मैं बेचारी तो किसी से गिला करने की हकदार न पहले थे न आप खुद को समझते। ऐसा ना कहें भाभी, आपने तो हमेशा खुद को हमसे दूर रखने की कोशिश की। सिर्फ इसलिए कि आपके खानदान के लोगों ने कभी मुझे इस काबिल ही नहीं जाना कि अपनी बराबरी करने दें। खान बहादुर साहब की आंखें बंद होते सब लोगों ने हमसे आंखें फेर ली। मेरी
मेरी मासूम बच्ची के सर पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं था। भाभी ऐसा मत कहो, आपकी बच्ची हमारी बच्ची है। और मेरे लिए भी जेबी दुनिया का अनमोल मोती है। अब पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा है भाभी। खैर आप ऐसा करें कि जल्दी से तैयार हो जाएं और चलें हमारे साथ। इस वक्त तो नहीं, मैं बाद में आऊंगी। ठीक, लेकिन जेबी बेटी हमारे साथ चलेगी। जेबी तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? ढूंढने से इंसान कहीं भी पहुंच जाता है अली। मैं अगर चाहूँ भी तो तुम तक नहीं पहुंच सकूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचना भी छोड़ दिया। ये झूठ है अली, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी सोच ही यहाँ तक लेकर आई है। मैं अब भी तुम्हारे ख्यालों के बीच खड़ी हूँ। तुम मेरे ख्यालों से निकल जाओ जेबी। तुम्हारे और मेरे दरमियान ना खत्म होने वाले फासले हैं। मैं इन फासलों को खत्म करने आई हूँ अली। ये नामुमकिन है। हमारे दरमियान सदियों का सफर पड़ा है। सदियों का सफर? एक बेवा माँ की नातमाम आरज़ुएं, एक रवायत परस्त बाप के मुंह से निकले हुए अल्फाज। रिवायत परस्त बाप? हाँ जेबी, हम सब रिवायत की सलीब पर दम तोड़ती हुई बेबस मखलूक हैं। रिवायात?